Hello dear students, a very warm welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope again you are well, happy, healthy, enjoying. So let's talk about our next lecture. In the last lecture, what we had discussed, we had started the spherical mirrors and how spherical mirrors are formed and the related terms with the spherical mirrors. We had seen the concave mirror, convex mirror, their pole, center of curvature, radius of curvature, focus, right? Focal length, all these things we had seen, and then aperture, right? So all these things we had seen, and now we are going to do the image formation because of the spherical mirrors. So as an activity, what you can do is you can take a concave mirror around, you can ask in some shops, you'll get it. So use that mirror and try to plot the images with that. What you have to do, take a mirror, right? Take a mirror. How we will make the concave mirror? Which part will be polished and which part will be reflecting? This part is going to be reflecting, this part will be polished. So now here we have polished part. So this is a concave mirror. Now if you want to see the image of an object, what you'll have to do, keep that object in front of mirror, है ना? उसके पीछे रखोगे, मिरर के पीछे रखोगे तो इमेज तो नहीं बनेगी. सो आपको उसके सामने रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने. सो हमने यहाँ पे रखा. अब इसके सामने रखने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, व्हाट कंडीशंस? सो yesterday we had seen, in the last class we had seen that for a spherical mirror we have this point called as pole, which can be represented by P. Then its center of curvature. So let's say the sphere from which this mirror is being cut out is of radius r and its center is here, right? So this will be center, and the midpoint of this line PC will be focus, correct? And then this distance is going to be equal to radius of curvature. So all these things are there. Now you have different points and you can put object in between these points. So you can put an object at infinity, means at a large distance from the mirror. Then you can slowly bring that object here, and then you'll get the first point, that is center of curvature. So starting from infinity, what you have to do? Starting from infinity, bring that object closer to the mirror and observe how image changes, how image is forming, right? So we can bring this object from infinity, then slowly, then it will be beyond C. So basically this range is called beyond C, beyond center of curvature. Then you come to the center of curvature, then from center of curvature you come to focus, then from focus you come to this point called pole. So at different ranges or different distances you will find that image formed are different. So from this activity you will get a result. I'll make a table for concave mirror. So the table is object distance or place where object is kept. So first, what all cases we have? First is at infinity. At infinity, right? So when object is at infinity, the rays will be coming like this. ठीक है, तो रेज कैसी आ रही है? These are parallel to the principal axis. Principal axis क्या है? This is the principal axis. This line is the principal axis. ये सब बताया था. Principal axis, principal focus, center of curvature, pole. So this line is principal axis. तो जो rays आ रही हैं parallel to principal axis, all those will go from focus. तो वो सारी की सारी रेज कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी. तो आपको ऑब्जेक्ट जो इमेज जो फॉर्म होगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी टू सी. ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इट इज बिटवीन सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड center of curvature, which is C. At that time you will observe कि जो image है वो कहाँ से कहाँ बनती है? फोकस से center of curvature के बीच. Image will form between focus and center of curvature.
between which points? F and C. So we have started moving the object from here towards the mirror. So infinity से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, इन्फिनिटी पे जब थे तब फोकस पे बना, इन्फिनिटी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, इन्फिनिटी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो इमेज इन्फिनिटी पे थे तब कहाँ बनी? वो फोकस पे बनी। ठीक है, अब जब हम इधर से इधर गए तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव की। इमेज कहाँ से कहाँ मूव की? जब हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज थी फोकस पे, और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो इमेज आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, इमेज मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, इसके बाद तीसरा, व्हेन वी आर एट सी, जब इमेज सी पे है, सी पे मतलब इस जगह पे रखी हुई है, तो इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी? एट सी। ठीक है, वो बात करेंगे हम लोग धीरे से उसके बारे में। इसके बाद फोर्थ क्या हुआ? अब इसको हम और वी आर मूविंग इट टूवर्ड्स दी मिरर, तो क्या होगा? सी से जब एफ पे गए, बिटवीन सी एंड एफ, तो हमने देखा कि जब इमेज सी, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम सी से एफ पे लेके जाएंगे तो इमेज विल मूव फ्रॉम सी टू इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, these are the observation from activity. We are going to plot the ray diagram for each of these case and you will find that this table is true. ठीक है, तो ये क्या है? between C and infinity. इसके बाद फिफ्थ क्या है? अब कहाँ पे आ गए? we have reached to the focus. So when we are at focus, image will be at infinity. फिर when we move from focus to pole, when we move from between focus and pole, तो जब हम फोकस से पोल की तरफ लेके जाते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है, इमेज बिकम्स, इमेज कहाँ बनती है? ये बनती है इनसाइड दिस मिरर। जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, प्लेन मिरर में आपको आप अंदर दिखते हो, इनसाइड द मिरर, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि मिरर के पीछे दिखते हो आप, तो यहाँ पे वैसे ही बिहाइंड दिस मिरर द इमेज विल फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि बिटवीन P एंड द पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अच्छा, इतना भी नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ लिखो कि बियॉन्ड P या फिर बिहाइंड पोल। ठीक है, बिहाइंड पोल, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड पोल। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशन की इमेज कहाँ बनेगी। अब इमेज कैसी बनेगी? तो नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, तो ये जो पार्ट है, इतने पार्ट में एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इतने पार्ट में रियल इमेज बनेगी। रियल, 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 रियल एंड रियल। यहाँ पे कैसे बनेगी? इट विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल। तो रियल इमेज मतलब क्या होता है? रियल इमेज इज द इमेज विच यू कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, मान लो ये प्लेन मिरर है, तो मुझे मेरी इमेज इनसाइड या फिर बिहाइंड दिस मिरर दिख रही है। कैन आई टेक दिस इमेज ऑन अ स्क्रीन? किसी स्क्रीन पे हम उसको ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप इन केसेस में आप प्लॉट करके देखोगे तो आप मिरर के सामने यहाँ पे कहीं स्क्रीन रखोगे तो आपको वहाँ पे इमेज दिखाई देगी। शायद आपको ये 8th में एक्टिविटी कराई गई होगी, कैंडल वगैरह लेकर के आपको इमेज फॉर्मेशन कराया गया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा 8th में आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ाई नहीं था, ओके, नहीं कराया गया होगा, बट एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। इस केस में आपको क्या मिलेगा? इमेज विल बी रियल एंड इट विल, यू कैन ऑब्टेन इट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज का मतलब होता है जिसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, और वर्चुअल इमेज मतलब जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जो बिहाइंड द मिरर बनती है। भाई मिरर की उस साइड बन रही है ना, इस मिरर के अंदर बन रही है या पीछे बन रही है, उसको हम कैसे ले पाएंगे स्क्रीन पे? अगर ये रिफ्लेक्ट होके रेज इधर कहीं मीट होती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें स्क्रीन पे इमेज मिलेगी। लेकिन इन सारे केसेस में हमें मिलती है, इस केस में लेकिन हमें इमेज रियल नहीं मिलती, इट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते, जो बिहाइंड द मिरर आपको मिलेगी। उसके अलावा एक आता है कि उसका नेचर के बारे में और एक चीज बोलते हैं कि सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी बनेगी, या जैसा ऑब्जेक्ट था उसकी ऑपोजिट बनेगी। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे बनेगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था उसकी उल्टी, है ना, अपसाइड डाउन। अगर ये मार्कर ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी,
दिस इज इन्वर्टेड, ये भी होगा इन्वर्टेड, ये भी होगा इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड, और ये होगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा। सीधा का मतलब है या इरेक्ट का मतलब है कि द ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी। ठीक है, उसके अलावा और एक नेचर के बारे में हम बात करते हैं कि छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। ठीक है, तो जब इंफिनिटी पे है और फोकस से बन रही है तो यहां बनती है डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, और जब हम लोग बिटवीन इंफिनिटी एंड सी है तो वही स्मॉलर या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। जब हम सी पे हैं तो सेम, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही बनेगा। फिर जब हम सी से एफ में गए तो लार्ज। ठीक है, फिर जब फोकस पे हैं तो लार्ज, फिर उसके बाद जब फोकस से हम पोल के बीच में हैं तब भी लार्ज या फिर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ भी मैग्नीफाइड, यहाँ भी मैग्नीफाइड। तो इस केस में क्या होगा, जब हम यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट जब इस रेंज में है तो इमेज छोटी बनेगी। फिर जब यहाँ पे आए, ठीक है, इस जगह पे जब हम आए तो इमेज सेम बनेगी। फिर जब यहाँ से यहाँ गए तो इमेज बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सही लिखा है। उसके बाद फिर जब फोकस से पोल के बीच में गए तो फिर से इट विल बी मैग्नीफाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये टेबल फ्रॉम, यू विल गेट इट फ्रॉम एक्टिविटी। ठीक, तो अब यहाँ इस चीज को हम रे डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अब रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका मान लो एक्सिस है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब यहाँ से ये पूरा 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 एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज जाएंगी ऐसे। अब अगर वो परपेंडिकुलर जा रही है, रेज अगर ऐसे जा रही हैं तो ऐसे ही वापस आ जाएंगी। ठीक है ना, नॉर्मल के अलोंग भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे यहाँ से इमेज जाएगी वैसे ये वापस आ जाएगी, क्योंकि एंगल कैसा बना, नॉर्मल के साथ 0, और तो वापस आएगा तब भी 0 बनेगा। तो जैसी गई वैसी आ जाएगी। अगर यहाँ से इमेज यहाँ से रेज ऐसी जा रही हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रही होती हैं, बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं। ठीक है, तो एक रे ऐसी चली गई, दूसरी रे फिर यहाँ पे पहुंच गई, तीसरी यहाँ पे पहुंच गई, तो मैंने ये वाली रे लिया। अब ये वाली रे अगर आ रही है यहाँ पे, मान लो ये थीटा बनाती है, ये है नॉर्मल। इस पॉइंट पे किसी भी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है रे, वहां पे हम नॉर्मल बनाते हैं। तो इस जगह पे नॉर्मल ये है। अगर ये थीटा है तो यहाँ से क्या होगा, ऐसी थीटा से रिफ्लेक्ट होके ये आएगी। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें मिरर, प्लेन मिरर के उस साइड हमें इमेज क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, तो भाई यहाँ से जो रे गई वो ऐसे वापस आ गई। तो आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये रे कहीं इधर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, जैसे ये वाली रे गई है आपसे, यहाँ पे टकराई और ये ऐसे आई, तो देखने वालों को क्या लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब क्या है, इन दो रेज को अगर हम ज्वाइन करें, जो रे गई और टकरा के वापस आई, तो ऐसा लगेगा कि बहुत दूर से आ रही है, वो मिरर के पीछे से आ रही है। तो ऐसे सिर्फ एक रेज नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेज हैं जो जाकर के हर एक पॉइंट की ऐसे इमेज बनाती है। लेकिन हमें सिर्फ 2 रेज अगर हम यूज करें, किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं। ठीक है, हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह, एवरी पॉइंट ऑन माई बॉडी, एवरी पॉइंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स, तो वो उससे इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। लेकिन हमें प्लॉट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्लॉट करने के लिए हमें 2 रेज काफी हैं। वो 2 रेज का जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट की इमेज वहां बन जाएगी। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हमने निकलने वाली 2 रेज ली, एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, जो परपेंडिकुलर रे जाएगी वो परपेंडिकुलर ही वापस आ जाएगी। अब ये रे आपको कहीं दूर से आती हुई दिखाई देगी, वैसी ये रे ऐसी गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया हमने। तो ये रे हमें, इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं पीछे से आती हुई नजर आएगी। नाउ इन 2 रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको क्या देगा, दैट विल गिव यू द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो देखो वही बन रहा है ना, और ये डिस्टेंस भी मैंने थोड़ा सा एंगल, अब यहाँ पे एंगल छोटा, एक जगह एंगल बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा ढंग से बनाएंगे अगर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और इसको फिर अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये और उधर जाके कहीं मिलेगा।
ठीक है, दूर जाके मिलेगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब एग्जैक्टली सेम वहां बना नहीं है ना, या फिर आप चाहो तो इसको फिर से बना लेते हैं, थोड़ा इधर लेकर के। ये है आपका प्लेन मिरर, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस पॉइंट की हम इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक रे भेजी हमने, अब परपेंडिकुलर रे गई है तो परपेंडिकुलर ही वापस आ जाएगी वो। सो ऐसे ही वापस आ गई, और क्या लगेगा कि ये बहुत कहीं पीछे से आ रही है। नाउ दूसरा हमने लिया, उसको यहाँ पे हमने इंसिडेंट कराया। सो दिस इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, ये हो गया थीटा। तो सेम एंगल से ये वापस आएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो कुछ यहाँ पे इमेज बनेगी। अब आप देखो कि ये डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस लगभग सेम है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रॉम मिरर, एट द सेम डिस्टेंस उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो हमने सिर्फ इस पॉइंट का बनाया, इस पॉइंट का अगर बनाना है तो एक रे यहाँ से जाएगी और ऐसे ही वापस आएगी। इसको आप मान लो कि इधर कहीं पीछे से आ रही है। दूसरी रे को कैसे भेजें, तो किसी भी इस पॉइंट पे भेज दो और यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इसी एंगल पे जाएगी, इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरीके से कट करेगा। तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन गई, इसका और इसका इंटरसेक्शन यहाँ बन गई। दिस इज योर इमेज, ठीक है। सारे पॉइंट्स का बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, और हर एक पॉइंट, जैसे इसके लिए 2 रेस काफी थी, इसके लिए 2 रेस काफी थी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए या किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए आपको 2 रेस काफी हैं। सो नाउ ये तो हमने प्लेन मिरर में देख लिया। अब स्फेरिकल मिरर में सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसमें केसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। जैसे कि ये हो गया हो तो इसको नोट भी कर सकते हो, मतलब नोट तो वैसे हर चीज करना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, ढंग से अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सारी चीज नोट करो और अच्छे से प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग 4 केसेस अभी डिस्कस करेंगे, बोथ इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वो दोनों ही मिरर के लिए वैलिड हैं और दोनों के लिए प्लॉट भी करेंगे। तो पहली चीज आपने क्या क्या पढ़ा है, एक पोल, दूसरा लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये दूसरा फोकस, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किसी भी इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंसिडेंट रे बनाए आपने, ठीक है। अब आपको भाई नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल से तो आप क्या करोगे, यू विल बी एबल टू प्लॉट, जब आपको पता होगा कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कहाँ से बनेगा, तभी तो आप रे को रिफ्लेक्ट करा पाओगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो इस मिरर का कोई भी पॉइंट अगर आप लो, सो एवरी पॉइंट, if you join that point with the center of curvature, that line is going to be the normal at that particular point. जैसे अगर हम इस पॉइंट पे इसको इससे ज्वाइन करते हैं, then that will be normal at that point, at this point, right? तो C से ज्वाइन करो तो वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, जिस भी पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो उस पॉइंट पे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई भी 2 रेस चूज करना है, ठीक है। अब उसके लिए आपके पास 4 तरीके हैं, 4 में से आप कोई भी 2 ले सकते हो। पहली चीज कि रेज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और अभी सिर्फ एक रे के बारे में बोल सकते हो, रे कमिंग टू पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस will pass from focus after reflection. The rays coming parallel to the principal axis will pass from the focus of concave mirror and will appear to be passing from focus in convex mirror. जैसे concave mirror हो गया, convex mirror में क्या होगा, this will be reflecting surface, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, rays coming parallel to the principal axis, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। अब इस केस में फोकस कहाँ है, फोकस तो उस साइड है ना, फोकस तो उस साइड है। तो इस केस में क्या होगा, इट विल पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, सब कुछ इस साइड होगा। तो लेट्स से दिस इज फोकस
एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसा अपीयर होगा? इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। तो भाई रे यहाँ पे एक्चुअल में तो जा नहीं रही है ना, बस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है, तो ये क्या होगा? इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अगर इतने पार्ट को भी थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, आप लोग इतने को भूल भी जाओ, तो क्या हो रहा है? रे ऐसे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, ठीक है? रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, इसमें क्या हुआ? रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और ये है डाइवर्जिंग। क्यों? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे सारे को मिला देना, कन्वर्ज कर देना। लाइट आई तो उसको इस तरफ झुकाना। बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं, इधर से भी एक लाइट आएगी तो वो भी फोकस से पास होगी, ठीक है? तो सारी की सारी इसके बीच में जितनी लाइट आएंगी सारी की सारी फोकस से पास होंगी। तो क्या कर रहा है ये? लाइट को, बहुत सारी जो लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पे ले जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? जैसे अगर यहाँ पे हम लोग और एक पैरेलल रे बनाए तो क्या होगा? वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो बेसिकली क्या कर रहा है? इसके बीच में जितनी रेज थी, जितनी भी रेज थी, सबको क्या किया उसने? ऐसे दूर भगा दिया, डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो पहला केस क्या हुआ कि रेज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? एक बार फिर से बता देते हैं अगले केसेस, इसको ध्यान से सुनो, अगले केसेस अपने आप समझ में आएंगे। भाई कोई भी मिरर में लाइट अंदर नहीं जाती, वो ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, ठीक है? यहाँ पे ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके आ गई, ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक? लेकिन हमें क्या लगता है कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है? इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस केस में क्या है? इस केस में फोकस वगैरह तो इस साइड है, ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई एंड इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, it will reflect in such a way that it will appear to be coming from this particular point। अब इस केस में क्या होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उससे बहुत सारी रेज आ रही हैं, उससे बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी रेज जो है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लग रहा है? इस पे टकराई और वापस आई, ऐसा लग रहा है ये रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से निकल के आ रही हैं वो रेज। तो ये जो इन्फिनिटी पे जो रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, वो ऐसा लगेगा कि वैसा ही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसी रेज ये भेज रहा था वैसे ही रेज ये भेज रहा है, ठीक है? बट इसकी रेज कैसी है? इस फोकस से आ रही हैं और सारी ऐसे डाइवर्ज होती दिखाई दे रही। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो रेज आई, उनका रिफ्लेक्शन हुआ, उनको हमने एक्सटेंड किया तो वो यहाँ पे मिली, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो रेज लो, ठीक है? उनको रिफ्लेक्ट करवाओ, उनको मीट करवाओ, एक्सटेंड करके जहां भी वो मीट होती हो, एंड एट दैट पॉइंट यू विल गेट द इमेज। सिमिलरली इस केस में क्या है? इस केस में बना, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, या फिर हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ अगर आप छोटा सा स्क्रीन रख देते हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ अगर आप छोटा सा स्क्रीन रख देते हो, तो क्या होगा? इमेज रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आई। अब अगर आपने इनको एक्सटेंड किया, है ना, रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही इनको आपने एक्सटेंड किया, तो वो इस पॉइंट पे मिल रही है। आपको वर्चुअल तरीके से एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये मिलने वाली नहीं है, आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, इसका मतलब आगे कहीं भी, इस कहीं पे भी यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगी, इसलिए हमने पीछे एक्सटेंड करके देखा, हाँ पीछे मिली। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक? तो इस केस में क्या हुआ? आपको स्क्रीन पे इमेज मिलेगी, बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में मीट कर रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पीछे इस पॉइंट पे मीट की होंगी और वहां से निकल के आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि ऐसा लगता है और यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है? तो वो तो वर्चुअल रियल अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? रे इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम जो बनाया जाता है ना, इनको रे डायग्राम बोलते हैं। रे डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला आपने ये देख लिया कि रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू बी विल पास फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ में आया? अब दूसरे केस पे आ जाते हैं।
दूसरा केस क्या है कि अगर आपने किसी कॉनकेव मिरर के फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया या फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी रखा, तो ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अगर फोकस है, तो कोई रे अगर, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, इफ अ रे इज कमिंग एंड इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, एक रे आई और वो फोकस से पास हुई, फोकस से पास होते हुए अगर वो मिरर पे टकराती है, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बेसिकली लाइट जो होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब अगर आपने ऐसे लाइट भेजी तो वो फोकस से पास होगी, अगर आपने फोकस से लाइट भेजी तो वो ऐसे पास होगी, सीधी सी बात है ना। अगर वो लाइट यहाँ से क्या होगा, अच्छा पिछले वाले केस में भी ये बताना था, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये लाइट ऐसे आई और ये फोकस से पास हुई ना, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस पॉइंट पे हमें इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इससे इसको कनेक्ट कर दो, यही तो हुआ ना नॉर्मल, सेंटर से किसी भी स्फीयर की किसी भी पॉइंट पे उसके सेंटर से लाइन बनाओ, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, इतने से पार्ट के लिए दिस इज दी परपेंडिकुलर, ठीक, समझ में आया। तो अब क्या होगा, दिस एंगल, ये लाइट इंसिडेंट है, ये लाइट क्या है, रिफ्लेक्टेड है, दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड बोथ दिस इज आई, तो ये भी क्या होगा, आई होगा, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस केस में क्या है, अगर हमने लाइट को, इसी को हम रिप्लेस करते हैं, अगर हमने लाइट को ऐसा ना भेज के ऐसा भेजा तो लाइट ऐसे जाएगी और उसी एंगल पे आएगी, तो वापस तो इधर ही आएगी ना। तो आपने अगर फोकस से पास होती हुई लाइट गई भेजी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एंड इफ यू सेंड अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास फ्रॉम फोकस। तो सिमिलरली यहां से अगर आपने कोई लाइट भेजी, ठीक है, तो इट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। So first thing is, when light is parallel to the principal axis, if a ray comes parallel to the principal axis, it will pass from focus of concave mirror and appear to be passing from focus of convex mirror. उसके बाद दूसरा क्या है, when a light is passing from the concave mirror, when a light is passing from the focus of concave mirror or appearing to be passing from the focus of convex mirror, those light will come parallel to the principal axis after reflection. तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या बोला, आपके दिमाग से परपेंडिकुलर चला गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, उसको एक बार समझ लेंगे। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में जब फोकस इस साइड है ही नहीं, आप मिरर के अंदर घुस के लाइट तो नहीं भेज सकते ना वहां से, तो यहाँ पे जब मिरर है, फोकस है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला कि the light or the ray passing from the focus of concave mirror will appear to be coming parallel to the principal axis after reflection, or a light appearing to be passing from a light or a ray appearing to be passing from the focus of convex mirror will go parallel to the principal axis after reflection. तो इसका क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका फोकस यहाँ पर है। अब कैसे appearing to be passing from focus, क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि देखो, एक इसको अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, गंदा लग रहा है ये, तो इसको अगर ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लाइट इस लाइन के अलोंग आ रही है, एक लाइट है, अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक लाइट है जो इसके अलोंग आ रही है, इट इज मूविंग लाइक दिस, एक रे है जो ऐसे आ रही है, तो अगर इसको आप एक्सटेंड करते हो इट विल पास फ्रॉम फोकस। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट वहां अंदर चलेगी, लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे एक लाइट है जो कि फोकस, ऐसा अपीयर हो रहा है कि इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा अपीयर हो रहा है कि इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, इन दैट केस वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ठीक है। एक लाइट जो कि मान लो ऐसे आती है, इसको अगर एक्सटेंड किया तो फोकस से पास होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पिछला वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें क्या बनाया था मैंने कि अगर एक लाइट ऐसे आती है तो इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। ये आपका क्या है,
दिस इज अ पॉइंट वेयर लाइट इज इंसिडेंट। इस पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो कहाँ से बनाओगे, यहाँ से नॉर्मल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, I इज इक्वल टू आर, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ये I है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज नॉर्मल, I इज इक्वल टू आर। वही चीज यहाँ भी होगी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं इधर, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों सेम ही है। तो लाइट को ऐसे भेजो तो ऐसे जाएगी, और अगर ऐसे भेजो तो ऐसे जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट वाज दिस कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। अगर फोकस से पास होती दिखाई दी तो इट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं, ऐसा लगता है, वर्चुअल मतलब ऐसा लगता है, रियल मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, if a light is coming parallel to the principal axis it will appear to be passing from focus, and when it will appear to be passing from focus ऐसे डाइवर्ज होके जाएगी। और अगर लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस से पास हो रही है, तो इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव मिरर में क्या है, सीधा है कि अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से पास होगी, जो कि रियल है। अगर लाइट फोकस से पास होके जा रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो कि रियल है। यहां से आप लाइट भेज दो, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट आपको ऐसे भेजना पड़ेगा, आपको फोकस नहीं पता कहाँ है, इधर इस साइड तो है ही नहीं, इधर पता है कि हाँ वर्चुअली एक फोकस है, तो उस फोकस की तरफ आपने इसे लाइट किया तो इस तरीके से आएगी। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए, पहला, दूसरा। क्या क्या है कि पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, या फोकस से जाते हुए लगेगी, और फोकस से जाते हुए लग रही है या फिर फोकस से जा रही है तो इट विल कम आउट पैरेलल। इसके बाद तीसरा क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब एक लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई फॉल्स ऑन द मिरर, ठीक है, ऐसे गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अगर गई तो वो कैसे वापस आएगी, सोच के देखो, खुद ही सोचो, पॉज कर दो वीडियो, सोच के देखो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके अगर इंसिडेंट होती है तो कैसे वापस आएगी। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। ओके, आई थिंक आपने सोच लिया है। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो यहाँ पे कैसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा ना। इसका मतलब इंसिडेंस एंगल कैसा है, जीरो, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी होगा जीरो। इसका मतलब जैसे कि वैसे वापस आ जाएगी। और हमें तो पता है ना कि नॉर्मल के अलोंग अगर हमने लाइट भेजी तो वैसे ही वापस आ जाएगी, है ना। परपेंडिकुलर जब इंसिडेंस होता है तो जैसे लाइट गई वैसे ही वापस आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे लाइट जाएगी और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। यहाँ से अगर लाइट जाती है तो ऐसे जाएगी, ऐसे ही वापस आ जाएगी। ऐसे लाइट अगर जाती है तो ऐसे जाएगी, ऐसे ही वापस आ जाएगी। ऐसे लाइट अगर जाती है ऐसे जाएगी, ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक। इस केस में क्या होगा, इफ इट अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये भी सोच के देखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती दिखाई दे रही है, मतलब कैसे आ रही होगी लाइट, इस तरीके से आ रही होगी लाइट, है ना। इस तरीके से अगर लाइट आ रही होगी तो इसी तरीके से वापस चली जाएगी, ठीक। इस तरीके से अगर लाइट आई होगी, ये डैश लाइन का मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब है वर्चुअल, चीजें वर्चुअल हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे लाइट जाएगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस है तो जैसे लाइट गई उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, राइट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बट उसी लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा क्या है कि ये अगर आपका पोल है, ठीक है, पोल से अगर यहाँ पे बनाया एंगल आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, कैसे आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ पोल, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ पोल।
सो डेफिनेटली ये अगर सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन यहाँ भेजी गई है, इसका मतलब दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल से अगर ये आई बना रहा है तो ये भी आई ही बनाएगा, तो आई विल बी या फिर आर विल बी इक्वल टू आई। तो जिस एंगल से पोल पे जो रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, उसमें भी सेम चीज होगी। भाई पोल तो यहीं पे है, प्रिंसिपल एक्सिस यहीं पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई पे आई पे गई, या फिर थीटा पे आई, थीटा पे गई। ठीक है, तो दिस इज द 4 वेज यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम्स। क्या क्या, फोकस से अगर गई तो पैरेलल आएगी, या फोकस से जाते हुए अगर लग रही है तो पैरेलल आएगी। अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी या फिर फोकस से जाते हुए लगेगी। लगता किस में है, कॉन्वेक्स मिरर में। होता किस में है, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में लगता है, मतलब वहां पे चीजें वर्चुअल हैं। कॉनकेव मिरर में होता है, इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, तो दो केस वो हो गए। तीसरा केस क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होते हुए कोई लाइट जाती है एंड इट फॉल्स ऑन द मिरर, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए अगर लगती है तो वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे गई ऐसे ही वापस आ गई। अगर पोल पे लाइट आ रही है एंड इट इज मेकिंग सम एंगल आई विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेम एंगल पे जैसे आई सेम ही इंसिडेंट्स पे या सेम ही एंगल पे इट विल गो बैक। सेम इज द केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज 4 थिंग्स आर देयर। यूजिंग दीज 4, आउट ऑफ दीज 4 आप कोई भी 2 ले सकते हो। आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसमें से इनमें से कोई भी 2 चूज की आपने ऑप्शन, उसकी हेल्प से आपने उसका रे डायग्राम बना लिया और उसकी इमेज प्लॉट कर ली। तो आप कोई भी 2 ले सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज आप इंसिडेंट करवा सकते हो इन एनी ऑफ द 4 वेज, और आप इमेज फॉर्म कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगला जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो एंड एंजॉय। बाय बाय।